Welcome on to the chapter The Third Level by Jack Finney of your book Vistas. This chapter actually basically based on parallel universe or the time travel. So I'll start with this chapter. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I've been on the third level of Grand Central. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody. I know, wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. So here the stack means piles of object. कई सारे जब objects आप इकट्ठे हो जाते हैं, चट्टा लग जाता है, उसे बोलते हैं stack. And walking dream की कोई ये आपका सपना पूरा हो रहा हो. So the story starts with the mention of the third level of Grand Central Station. Grand Central Station के बारे में बताना शुरू करता है, which has only two levels. सबके दो levels होते हैं. इस चैप्टर को समझने के लिए आप ये समझो कि किसी के भी दो levels होते हैं, एक starting और एक end. But writer here says कि एक third level भी है, तो वो खुद अपने आप को प्रोटैगनिस्ट बनाता है, यानी कि उसको खुद ऐसा मानता है कि ये मेरे साथ हुआ है, and then he write the story. So he is aware that even the president of New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad, ये जो presidents है New York Central के, New York के, New Haven के और Hartford Railroad के, they express great confidence in the existence of only two levels. हर कोई अच्छे से मानेगा कि नहीं दो levels ही हैं, but he himself has been the third level. But writer यहाँ पे third level visit कर चुका है. That means parallel universe जा चुका है. Now considering the entire scenario, Charlie जो कि यहाँ पे राइटर है had a word with his psychiatrist friend. वो अपने psychiatrist friend से बात करता है and explain, फिर वो उसे explain करता है कि Charlie was experiencing a walking dream wish fulfillment, कि उसका एक सपना पूरा हुआ. दूसरे वर्ड्स में कहे तो ये एक धोखा था, hallucination था. लेकिन psychiatrist के अकॉर्डिंग चार्ली बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी वाइफ को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी. क्या तुम थर्ड लेवल पे गए, क्या बेतुकी बातें करो. उसके गुस्से का कारण हमको बाद में पता चलेगा. बात भी सही है कि गुस्सा क्यों है, तो बाद में बताता है कि ये बाद में क्लियर होता है कि बर्डन ये है द ऑल मॉडर्न, जितनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो आजकल का जो वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर से भरा है, वॉर हर तरफ, वरी हर तरफ, बस बेचैनी बेचैनी, और वो इससे बचना चाहता है. So, the burden of all the modern problems is pushing him to experience the apparent perception of something. माने कि थोड़ा apparent perception लेके जाता है या उससे जैसा. He wants to escape reality. वो इससे बचना चाहता है. So Charlie agreed with that psychiatrist friend had to say, but it found it odd. Had been to third level of the Grand Central. वो कहता है कि Charlie agree करता है कि psychiatrist friend को उसने जो बताया वो उसमें मैं मानता हूँ, लेकिन मुश्किल है इसको मानना कि कोई थर्ड लेवल भी हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का. अब उसकी वाइफ क्यों नाराज थी से बाद में पता चलेगा आपको, वो पॉइंट आप याद रखना, आगे चल के बताऊंगा. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claim. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. So peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too.
blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. Now, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. Now, हम आगे की तरफ चलते हैं. खैर, ये तो यहां तक की बात हो गई. अब चार्ली स्टार्टेड टू बिलीव, वो मानना शुरू कर देता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने वाकई में एक्सपीरियंस किया है, कि थर्ड लेवल पे गया है, यानी कि वो एक ऐसी दुनिया में गया है जो टाइम ट्रेवल है. और लेकिन टू एस्केप द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी से उसको बाहर निकल के आना बड़ा मुश्किल था. उसके फ्रेंड भी इस बात को मानते हैं, यहाँ तक कि उसका स्टैम्प कलेक्टिंग एक तरह का उसका एक शौक है जो उसे बचा कर रखता है इन चीज़ों से. दूसरी तरफ कुछ वो और भी सोचता है. उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू की, उनका भी कलेक्शन उनके पास काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो और उन दिनों लोग अच्छा भी कलेक्शन भी करते थे, तब स्टैम्प कलेक्टिंग का एक शौक भी था लोगों के पास. सो दे हैड नॉट सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, उन्होंने कभी वॉर के नतीजे नहीं देखे. ठीक है, कि क्या होता है, पीस क्या है, हार्मनी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था. बस वो अपने स्टैम्प कलेक्टिंग में ही लगे. कहते हैं ना कुछ लोग जिन्हें मतलब नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपने में ही खुश है. तो हिज ग्रैंडफादर मस्ट हैव नॉट बीन इनसिक्योर, लेकिन उसकी ग्रैंडफादर इनसिक्योर नहीं थे. द कलेक्शन वॉज वेरी अमेजिंग. इनमें 4 ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली हर तरह का यूएस इशू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के भी स्टैम्प्स हैं उनके पास. खैर, अब वो एक्सप्लेन करता है, राइटर एक्सप्लेन करता है एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था, शुरू कैसे होता है. तो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे. वो सबवे मतलब कि जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है, वो अपार्टमेंट से अपने अपार्टमेंट से चलने की डिसाइड करता है कि मैं वहां से जाऊंगा, क्योंकि काफी लेट हो गया था तो बस मिलना मुश्किल था. तो टाइम बचाने के लिए उसने कहा कि सबवे का ही बेस्ट रहेगा. वो डिस्क्राइब करता है कि वो एक 31 ईयर ओल्ड बंदा है. ठीक है, नाम उसका चार्ली है. टैन गैबर्डाइन सूट पहना हुआ है, स्ट्रॉ हैट है, फैंसी बैंड है जो उसने पहना हुआ है, और वो इतना ऑर्डिनरी लगता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी के स्टेशन में आप उसे पहचानने की देख सकते हो. वो एक्सप्लेन करता है कि वो इतना नॉर्मल स्टेट की तरह जाता था कि उसे कहीं से बचने का उसने सोचा ही नहीं था कि मैं कहीं से बचूंगा भी. वो सिंपल चाहता था कि वो अपनी वाइफ के साथ, कि वो चाहता था, ऑल ही वांटेड वाज कि वो अपने वाइफ के साथ, कि वाइफ के पास जाए. ठीक है, उस टाइम पे. और उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. समझने की कोशिश कर, लेकिन हुआ कैसे ही समझ में नहीं आया उसको. So I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains from the 20th century. Then I walked down another flight for the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway, and got lost. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Charlie comes to the part of the incident. Charlie अब उस incident पे आता है, where he entered at the Grand Central from Vanderbilt Avenue, जहाँ से वो चलता है और पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल. जैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है तो वो सीढ़ियों को यूज करता है वहां तक जाने के लिए. तो पहला लेवल तो क्लियर हो जाता है, जहां पे ट्रेन वगैरह उसे मिलती है 20th सेंचुरी के लिए. 20th सेंचुरी में ट्रेन चलती है वैसे मिलता है. फिर वो दूसरे फ्लोर पे जाता है, यानी सेकंड लेवल पे पहुंचता है, जहां पे सब अर्बन ट्रेन जहां से चलती है.
वहां से वो आर्क डोरवे की तरफ जाता है। ही एंटर्ड एन आर्क डोरवे। आर्क डोरवे का मतलब है कि आर्क बना हुआ है, ठीक है, हाफ चांद जिसे बोलते हैं उस तरह से, और वही खो जाता है। वही होता है उसका एंट्री थर्ड लेवल। ये पहले उसके लिए नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि पहले वो कई बार आया 1000 टाइम्स ही एंटर्ड। तो कभी तो वो गलत लॉबी में एंटर कर जाता है, रूजवेल्ट होटल की तरफ चला जाता है, कभी वो किसी ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, तो 3 ब्लॉक छोड़ कर है, मतलब कि वो थर्ड लेवल में एंट्री कर ही रहा था, कभी किसी में कभी किसी में। उसे समझ में नहीं आता ऐसा हुआ क्या, बट उसे एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, मैं कहीं दूसरी जगह पहुंच रहा हूं। समटाइम्स आई थिंक Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब वो वंडर्ड करता, उसे आश्चर्य होता है कि दैट ग्रैंड सेंट्रल मतलब कि इतना एक्सपैंडिंग की तेजी से कैसे बढ़ा है। जैसे उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ की तरह है ये, उसकी कई सारी रूट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं उसके पास। ये उसके लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। वो जो है क्या नाम है, एक सीक्रेट टनल पे जाता है, सीक्रेट टनल से एक सिटी पे जाता है, टाइम स्क्वायर एक जगह का नाम है, वहां पहुंचता है, या मे बी सेंट्रल पार्क। उसे ऐसा लगता है, ही फील्स इट माइट बी बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल इज अ प्लेस ऑफ एग्जिट फॉर इन्यूमरेबल पीपल, कि ग्रैंड सेंट्रल ऐसी जगह जहां पर कई सारे लोगों से मिल सकते हो आप। ही ऑल्सो मैनेज टू एस्केप रियलिटी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। वो मैनेज भी करता है इस रियलिटी से इसी रीजन की वजह से। ऑल्दो ही नेवर शेयर्ड इट विद साइक, जबकि उसने ये बातें साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से, अपने जो साइकियाट्रिस्ट उसका जो फ्रेंड है उससे शेयर नहीं की, कि वो वाकई में कई बार कई जगह डिफरेंट लोगों से मिला, और ऐसा लगा जैसे कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, यानी दूसरे टाइम के लोगों से मिल रहा हूं। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।